Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today, in this video, let's understand the exercise questions of chapter 4 Heat. This chapter is in physics. So, I will start with the first one that state the similarities and difference between the laboratory thermometer and clinical thermometer. So first one, this question can be asked in either 3 marks or 4 marks because two similarities are there, half for each. So similarities are having one and difference having 2 points. So like this way we can include total 3 marks. Okay. So I will start with the first one, that is similarities. Similarities are that both clinical and laboratory thermometer, uh, their structure is common, like a long, narrow, uniform glass tube. The second difference is the bulb of both the thermometer have mercury in them. And we can write also that both are basically available in degree Celsius or degree Fahrenheit. That can be also written. So this is the similarity of laboratory thermometer and clinical. Their structure and mercury is there inside the bulb. Now moving to the next, that is difference between laboratory thermometer and clinical thermometer. You can see total 3 points are available, half for each. So first the difference is that the temperatures, laboratory thermometer and clinical thermometer में यही चीज का difference सबसे common है और सबसे important है. That is that laboratory thermometer is having the scale starts from minus 10 degrees Celsius and ends at 110, means 110 degrees Celsius. While the clinical thermometer is having 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius scale. Now, why they are having different scale? That in laboratory we are measuring the temperature of different objects while performing some experiment and all. So at that time minus 10 might be that object is having minus 4 or minus 5 degrees Celsius temperature. So the lower point we are consider as a minus 10, and may be possible that some sort of materials are there which are having the temperature which exceed 100 degrees Celsius. So that's why we are keeping the scale like in a manner minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. But clinical thermometer's main function is to measure body temperature, and usually the body temperature is between 35 to 42, and that's why we are keeping the clinical thermometer's lowest point as 35 and highest point as a 42 degrees Celsius. So this is the first difference. Second difference is does not has kink and it has kink. So laboratory thermometer does not has kink. The reason is very simple, that they have to perform the experiment and keeping the thermometer inside it, and they can easily see the result. But in clinical thermometer it must be has kink. Reason is that clinical thermometer's main function is to measure your body temperature. So when you keep the thermometer inside your mouth, it will going to show you the result. But when you keep that thermometer from out from your mouth, so at that time the mercury reacts with the room temperature and suddenly start falling down. So you cannot get exactly result of your body temperature. Okay. Now the clinical thermometer is having a small curved constriction, or should I say kink. So due to that reason, what will happen? It do not allow the mercury to fall down. So क्या होगा कि जब आप उसको माउथ में रखेंगे 1 मिनट के बाद उसको निकालेंगे, ये कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो मर्क्यूरी है वो वहीं का वहीं रहेगा, वो इमीडिएटली बल्ब के अंदर वापस नहीं आ सकता. So you can see the exact accurate result of your body temperature, and that's why it consists kink. याद रखना. And third one is that it cannot measure body temperature, laboratory thermometer, and it can measure body temperature. क्यों ऐसा है? इसका रीजन ही सेकेंड पॉइंट में गिवन है कि लेबोरेटरी के अंदर किंक है वो प्रेजेंट नहीं है. अगर उसमें किंक होता तो हम बॉडी टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं.
ओके एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर का तो एप्लीकेशन ही ये है कि इट इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. मूविंग टू द नेक्स्ट, give two examples each of conductors and insulators of heat. Now various examples are present, but let's see just two. That first one, the conductor means what? Conductor of heat means which allow the heat to pass through. Okay, so all the metals are good conductor of heat. So आप कोई भी metal का नाम mention कर सकते हो, चाहे वो gold हो, silver हो, aluminium हो, iron हो, copper हो, कोई भी लिख सकते हो. And two examples of insulators. Okay, so mostly non-metals are good conductor or good insulator of heat. Insulator means what? Which do not allow heat to pass through. Okay, so you can write wood, rubber, paper, plastic, कुछ भी लिख सकते हो. Okay, so these are the examples. Okay, and in exam जब भी आपको ऐसा पूछा जाए give two examples of each like, so उस टाइम पे आपको हमेशा 2 से ज्यादा एग्जाम्पल लिखने चाहिए आपके बैकअप के लिए. क्यों ऐसा? क्योंकि बाई चांस अगर सपोज आपने 2 ही लिखे और उसमें से एक गलत है तो आपके हाफ मार्क कट जाते हैं. लेकिन अगर आपने 4 लिखे हैं जिसमें से 2 गलत है, सो बाकी के 2 तो सही है, तो उसका आंसर उसका मार्क्स आपको मिलेगा कि नहीं. सो हमेशा अपने बैकअप के लिए जब भी ऐसा कोई एग्जाम्पल आए, गिव 2 एग्जाम्पल्स और लाइक, सो एग्जाम्पल्स हमेशा आप लोग जितने पूछे हैं उससे 1 या 2 ज्यादा ही लिखे आपके बैकअप के लिए. अंडरस्टैंड? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. The hotness of an object is determined by its definitely temperature. कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर. हर बार हम फील करके आइडेंटिफाई एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते. Next one is temperature of boiling water cannot be measured by clinical thermometer. क्यों ऐसा? Because you know the scale of clinical thermometer starts from 35 degrees Celsius and at 42 degrees Celsius. And पानी का boiling temperature 100 degree Celsius है. तो कैसे measure हो सकता है? So answer is clinical thermometer. Temperature is measured in degree Celsius. You can write degree Fahrenheit also, then also it's right. Next one is no medium is required for transfer of heat by the process of radiation. आपको पता है radiation की definition में mention किया होता है the heat transfer without any material medium is called radiation. Okay, so radiation से heat है वो without any material, मतलब no air, no space, no water, चाहे स्पेस हो तो भी हीट ट्रांसफर पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, जिसको हम रेडिएटिंग एनर्जी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज अ cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to its other end by the process of conduction. See, स्पून है वो एक सॉलिड मटेरियल है. उसको जब आप गरम चाय के अंदर डिप करोगे या गरम मिल्क के अंदर डिप करोगे तो उस टाइम पे वो मिल्क है वो एक हीट सोर्स की तरह काम करता है और वो स्पून के एक एंड को गरम कर देता है. अब वो सॉलिड है, सो व्हाट विल हैपन, हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स को मिलते ही वो वाइब्रेट एंड कोलाइड हो के बाजू वाले को मीन्स उसके नियर बाय को, फिर उसके नियर बाय को, लाइक मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स वो हीट ट्रांसफर करता है. एंड द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड in an object is known as conduction. So that's why answer is conduction. You cannot write convection. Next one is clothes of dash absorb heat better than clothes of light colors. आपको पता ही है डार्क कलर के कपड़े पहन के जाओगे गर्मी ज्यादा लगेगी समर सीजन में. लाइट कपड़े पहन के जाओगे तो ब्लैक की कंपेयर में कम मिलेगी. क्यों? क्योंकि डार्क कलर्स है वो हीट को क्या करते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं एंड लेस रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, इसलिए. नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग.
So in maths, the following the question is given and answer I have already mentioned. So I will just explain it in one sentence. So land breeze blow during. मैंने आपको बोला है कि आपको लैंड ब्रीज सी ब्रीज में अगर कंफ्यूजन हो तो मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ. ठंडी हवा जिस ओर से आती है उस ओर उसी को नाम दिया जाता है डैश ब्रीज. अगर रात को ठंडी हवा है वो लाइन से आती है तो नाम क्या दिया जाएगा? लैंड ब्रीज. एंड अगर ठंडी हवा अगर सी से आ रही है तो नाम क्या दिया जाता है? सी ब्रीज. ओके, सो लैंड ब्रीज कब पॉसिबल है? जब लैंड है वो कूल जल्दी होती है एंड उस टाइम पे जो वाटर बॉडीज होती है वो वार्म होती है. तो वाटर बॉडीज की एयर है वो ऊपर चली जाती है और उसकी जगह रिप्लेस करती है ठंडी हवा. ओके, फिर वो ऊपर जाएगी गर्म होके और उसको वापस रिप्लेस करेगी ठंडी हवा. सो उसकी वजह से ये एयर की सर्कुलेशन की वजह से एक विंड है वो जनरेट होता है, विंड करंट जनरेट होता है जिसका नाम दिया जाता है लैंड ब्रीज. सेम फॉर द सी ब्रीज. दैट सी ब्रीज है वो डे टाइम में पॉसिबल है कि लैंड गेट हीट फास्टर ड्यूरिंग द डे टाइम कंपेयर टू द वाटर बॉडीज. सो लैंड की हवा गर्म होती है वो ऊपर चली जाती है और स्पेस जो क्रिएट होता है उसको कवर करता है कौन? सी के ऊपर से आने वाली ठंडी हवा. फिर वो गर्म होके ऊपर जाती है फिर उसको रिप्लेस करते हैं. सो लाइक दिस वे क्लॉकवाइज एक एयर सर्कुलेशन क्रिएट होता है जिसको हम सी ब्रीज बोलते हैं एंड इट हैपन्स ड्यूरिंग डे टाइम. Next one is dark colored clothes are preferred during definitely in winter season because winter में temperature low होता है, आपको आपकी body warm रखनी होती है. Light colored clothes are preferred during summer season because उस time पे temperature ज़्यादा होता है. You have to feel little bit cool and refreshed, that's why. Discuss why wearing more layers of clothing during winters keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing. लंदन में अगर या आउट ऑफ कंट्रीज में यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ पे मोस्टली पीपल है वो उनके रेगुलर कपड़े फिर उसके ऊपर स्वेटर फिर उसके ऊपर वो बाहर जाने के टाइम पे बड़ा सा जैकेट पहन के जाते हैं. क्यों ऐसा होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? उसका रीजन बहुत सिंपल होता है कि भाई जितने ज्यादा कपड़े होंगे या जितने ज्यादा लेयर्स ऑफ क्लोथ्स होंगे उतना ज्यादा उनके बीच में एयर है वो ट्रैप्ड होगी और जितनी एयर ट्रैप्ड होगी तो आपको पता है कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. सो उसकी वजह से क्या होगा कि वो आपकी अंदर की मतलब आपकी बॉडी की गर्मी को बाहर एस्केप मतलब भागने नहीं देगा और उसी की वजह से ज्यादा आपको क्या फील होगा? वार्मथ है वो फील होगा. ओके, अगर सिंगल लेयर ऑफ क्लोथ होता जो भी मतलब वूलन वियर आपने पहना हुआ होता तो वो ये लेयर्ड कपड़े की कंपेयर में उसमें एयर है वो कम ट्रैप होती तो सम सॉर्ट ऑफ ही सही लेकिन आपको उसमें ठंडी लग सकती. लेकिन अगर आपने डबल लेयर किया हुआ है या ट्रिपल लेयर किया हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा हीट उसमें ट्रैप होगी एंड वो आपकी हीट को बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं देगी एंड इट विल प्रोवाइड यू क्वाइट वार्मथ एंड कंफर्ट. यस और नो? ओके, इसीलिए जब विंटर सीजन में जब लोग हम सोते हैं तो उस टाइम पे अगर सिंपल सिंगल लेयर का ब्लैंकेट ओढ़े उसकी जगह पे अगर हम बड़ा सा मोटा वाला अगर आप ब्लैंकेट ओढ़ते हो उसकी जगह पे सिंपल थिन लेयर का 2 ब्लैंकेट ट्रैप करोगे तो उसमें ज्यादा आपको वार्मथ फील होती है. ओके, सो प्लीज कंसिडर इट दैट. Next one is we have to just observe the figure and answer out that heat transfer is having by which method. So first one is very simple, that is conduction. आपको ये ट्राइपॉड दिखता है, ये ट्राइपॉड सॉलिड होता है मेटल का होता है और उसके ऊपर हमने एक पॉट रखा हुआ है. सो अगर हीट है वो ये ट्राइपॉड को मिलेगी. सो हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल from one end to other end from hot to the cold, okay, by an object is known as conduction. So ये दोनों के बीच में physical contact है, ये गर्म है ये उसकी कंपेयर में little bit ठंडा है. So physical contact भी है, temperature difference भी है and both are solid, so heat can be transferred from here molecule to molecule throughout. ये गर्म होगा और फिर उसको slowly and gradually pot को भी गर्म करेगा
सो इसको बोला जाएगा कंडक्शन। कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होता है, मतलब लिक्विड एंड गैसेस में। तो यहाँ पे फ्लूइड के तौर पे लिक्विड इज गिवन विच इज वाटर इनसाइड द पॉट। ओके, सो उसमें हीट ट्रांसफर कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। अब आप देख रहे हो कि इसके बीच में, मतलब पॉट एंड बर्नर के बीच में कुछ ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, स्टिल आपको हीट है वो मिल रही है। अगर आप पॉट के पास अपना हाथ लेके जाओगे तो आप टच करे बिना, तो क्या होगा कि आपको वार्मथ है वो फील होती है। सो इट इज नोन एज रेडिएशन। या इवन आप बर्नर के पास अपनी हाथ लेके जाओगे थोड़ा डिस्टेंस रख के, तो भी आपको वार्मथ फील होती है, मीन्स इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ रेडिएशन। क्लियर? ओके, सो विदाउट एनी मटीरियल मीडियम अगर आप हीट सोर्स के पास अपना हाथ लेके जाते हो एंड आपको वार्मथ फील होती है, so that process is known as radiation. Moving to the next is, in places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. मैंने आपको रेडिएशन समझाते वक्त बोला था कि दुनिया में किसी का भी घर काले कलर का नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन बहुत सिंपल है, that black color absorb maximum heat and reflect very little. ओके, सो हॉट क्लाइमेट जैसी जगह जैसे कि अपना इंडिया, सो यहाँ पे मोस्टली टेम्परेचर बिटवीन 35 to 45 के बीच में होता है ना? सो अगर आपका घर है वो डार्क कलर से कलर्ड होगा, सो व्हाट विल हैपन, इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द एटमोसफियर एंड आपकी घर है वो घर नहीं भट्टी बन जाएगी एंड आपको बहुत गर्मी लगेगी। ओके, सो ऐसा ना हो इसलिए मोस्टली पीपल आर यूज टू कलर विथ वाइट, ओके, और शुड आई से लाइट कलर, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट बैक, मतलब वापस एटमोसफियर में भेज देगा एंड कम अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगा, इसलिए आपका घर कैसा होगा? कूल एंड कंफर्ट। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। Next question is, now the all three questions, four questions are of MCQ. Let's see one by one. 1 liter of water at 30 degrees Celsius, okay, is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. दो पानी है, 30 डिग्री सेल्सियस वाला एंड 50 डिग्री सेल्सियस वाला। अब जब आप उन दोनों को मिक्स करोगे, सो एट दैट टाइम व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? 30 प्लस 50 80 होगा, कि भाई ना 50 से ज्यादा ना 80 से कम, या फिर 50 माइनस 30 का तो 20 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर 30 एंड 50 के बीच में होगा। सो ये चीज तो आप अपनी डेली लाइफ में करते ही हो कि जब भी गीजर का पानी यूज करते हो, समटाइम्स इट हैपेंस कि वो जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, आप क्या करते हो? उसमें ठंडा पानी डालते हो, तो ठंडा पानी डालने से वो चीज ज्यादा टेम्परेचर वाली हो जाती है? नो, ओके, it will remain between 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. An iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a containing water at 40 degrees Celsius. आयरन बॉल का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। और मग के अंदर के पानी का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। सो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? आयरन बॉल टू वाटर, or not flow from iron ball to water or from water to iron ball, flow from water to iron ball, increase the temperature of both. अब जब हमेशा हीट ट्रांसफर के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड, ओके, बट यहाँ पे तो दोनों ही 40 डिग्री सेल्सियस पे है, दोनों का ही टेम्परेचर सेम है, सो हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल? नो, सो आंसर शुड बी not flow from iron ball to water or from water to iron ball. Next one is, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other and wooden spoon जो हमें यूजुअली आइसक्रीम खाते वक्त मिलती है, सो उसमें कोल्ड है, वो कंडक्शन से पास ऑन होगी, कन्वेक्शन से होगी, कि रेडिएशन से होगी, कि वो ठंडी होगी ही नहीं? डेफिनेटली वुड इज अ इंसुलेटर ऑफ हीट, सो वो हीट कहाँ पास ऑन करने देगा? सो उसका अदर एंड क्या वो ठंडा होगा? नो, दैट वुड बी नॉट। ओके, सो आंसर इज डी, डज नॉट बिकम कोल्ड. Now last one is, stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that
ओके, स्टील का जो पैन होता है उसका नीचे का जो पोर्शन है मोस्टली वो कॉपर का होता है. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सी, स्टील इज एन एलॉय. एलॉय का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो मेटल है उनको मिक्स करके, दो मेटल नॉन मेटल को मिक्स करके वो जो चीज बनाई जाए उसको बोलते हैं एलॉय. स्टील एक एलॉय है क्योंकि वो आयन से बनी है, क्रोमियम से एंड मैंगनीज. इन तीनों को कुछ प्रपोर्शन के अंदर मिक्स करके एक शाइनी ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्टील. ओके, सो एंड कॉपर तो आपको पता ही है कि वो मेटल है. सो क्यों ऐसा लगाया जाता है? तो उसका रीजन बहुत सिंपल है कि स्टेनलेस स्टील एलॉय है. सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है मेटल, फिर उसके बाद आता है कोई भी एलॉय, फिर उसके बाद आता है नॉन मेटल. क्लियर? ओके, सो आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, सो उसमें हीट है वो इवनली पास ऑन नहीं हो सकती. इसलिए नीचे एक मेटल का लेयर लगाया जाता है, कॉपर का लेयर लगाया जाता है, सो दैट कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो इवनली पूरे पैन को हीट है वो प्रोवाइड करेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज दैट copper is a better conductor of heat than the stainless steel. I hope you enjoyed this chapter, though it was quite long, but still it was very informative. I hope you enjoyed it. Okay, related to heat chapter, if you have any doubt you can ask me into the comment section. I will answer you as soon as possible. Okay, next time I will come with new chapter which is very interesting, completely experimental, full with full of experiment. Okay, and you will going to enjoy it. You have to guess it. It is related with the chemistry. Okay, so get ready for that. Till then, just stay happy and keep smiling. Have a nice day. Bye.